بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو، ہم نے کل کے سبق میں مہر کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ اور پورے ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو سمجھا دیے کہ مہر کی 4 جو قسمیں ہیں اور کس نے کتنا مہر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں الحمدللہ کہ آپ تمام لوگوں کے مہر کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب مہر کے بعد میں اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے جہیز کا مسئلہ۔ مہر تو ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ اب نکاح کے اندر دوسرا ایک مسئلہ جو خاص طور پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہیز کا مسئلہ۔ اب جہیز میں بھی 2 قسمیں ہمارے یہاں پہ ہو چکی ہے، کیونکہ ہم انڈیا کے مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ انڈین ہے۔ تو ہمارا جو انڈین اسلام ہے وہ انڈین اسلام کے اندر جہیز میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک تو لڑکے کے کپڑوں کے نام پر ایک رقم لی جاتی ہے، اس کو میرے خیال سے بہار جھارکھنڈ کے علاقے میں تلک کی رقم کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں مہاراشٹرا میں اور حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں اس کو جوڑے کی رقم کہتے ہیں۔ یعنی جوڑے کی رقم یا تلک کی رقم، یعنی دونوں جو چیزیں ہیں وہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو رقم ہوتی ہے یہ کیا کیا جاتا ہے کہ لڑکی والے اپنے خوشی سے یا پھر لڑکی والوں کو مانگا جاتا ہے، جیسے لڑکا اگر ڈاکٹر یا انجینئر ہے تو 10 لاکھ 5 لاکھ روپئے جوڑے کے نام پر، یعنی جو پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے نام پر وہ لیے جاتے ہیں۔ جیسا لڑکے کا اسٹینڈرڈ ہوگا، اگر وہ تاجر ہے، دکاندار ہے، 2 لاکھ 1 لاکھ، مطلب ایسے لوگ جو ہے لڑکی والوں سے پیسے مانگتے ہیں، ان سے اس طرح سے پیسے لیتے ہیں۔ چلیے اب اس مسئلے کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو تلک کی رقم ہے یا جوڑے کے جو پیسے ہیں یا تلک کی جو رسم ہے، یہ قرآن اور حدیث میں کہیں ہے کیا؟ تو ہم کو اللہ کے نبی کی شریعت میں کہیں پر بھی اس کا وجود نہیں ملتا ہے، نہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ملتا ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں یہ چیز ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں آئی کہاں سے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے سماج میں یہ آئی ہمارے برادران وطن کے یہاں سے، کیونکہ ہم جو برادران وطن یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں تو اس طرح کی رسم اور اس طرح کے جو رواج ہے ان کے یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے یہاں پہ جب لڑکا لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو اسی وقت میں لڑکے کے جوڑے کی رقم طے ہوتی ہے۔ تو اب اس مسئلے میں ہم مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے لیے صاف طور پر یہ لینا بالکل بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، بالکل ناجائز ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں، اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے دے تب بھی ناجائز ہے، ایک رسم ہے یہ، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے انکار کرنا چاہیے۔ رسم آ رہی ہے، آپ بولیں گے وہ اپنے خوشی سے ہی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں لینا چاہیے، اور یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اس چیز کو سمجھو۔ ہمارے یہاں پہ انڈیا میں میں نے دیکھا ہوں بہت سارے لوگ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میں جہاں پہ امامت کرتا تھا تو مجھے جو ہے تھوڑا سا بارش کے اندر بائک کے اوپر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے پہنچا تو میرے پاجامے کے اوپر 2-4 قطرے پڑ گئے بارش کے۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ میرے منڈی آگے کر کے میرے سے کہنے لگے، بولے امام صاحب آپ کے کپڑے پہ جو ہے نا بارش کے 2-4 قطرے پڑ گئے ہوئے۔ تو میں نے کچھ نہیں کہا، ان سے میں نے کہا کوئی بات نہیں، نماز اس میں ہو جاتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ناپاک پانی کے دھبے پڑے ہوئے ہیں، یہ بارش کا یعنی پانی ہے یہ، اور وہ بھی ایسے مختصر جو نشان تھے وہ جو نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اب آپ سوچو، اتنی معمولی بات ہے یہ۔
इतनी छोटी सी बात, इतनी मामूली सी बात जिस पे नमाज पे कोई हर्ज नहीं होता है, उससे नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन साहब को ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा जो है तूफान आ गया। लेकिन वहीं पर जो है वो साहब अपने बेटे के लिए जो है एक जगह रिश्ते की बात कर रहे थे। वो जब वापस आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं बोला, हाजी साहब आप नजर नहीं आए आज जोहर में, असर में? नहीं, बोले वो हमारे फर्जंद के रिश्ते की तारीख की बातचीत थी, मैं वहां गया हुआ था। मैं बोला माशाल्लाह, हो गई बातचीत तय? हाँ बोले मौलाना, बातचीत भी तय हो गई और अल्लाह का इतना बड़ा करम हो गया, लड़की वालों का दिल जो है ना वो इतना बड़ा था बोले कि वो लड़की वालों ने 5 लाख रुपये दे दिए बोले जोड़े के लिए। मैंने कहा हाजी साहब वो तो नाजायज है आपके लिए। यानी इमाम साहब के पाजामे पे बारिश के 2-4 कतरे पड़ गए तो हाजी साहब जो है उनका डिप्रेशन ये हो गया, ऊपर हो गया ब्लड प्रेशर, कि पता नहीं मेरी नमाज होती या नहीं होती। लेकिन वही हाजी साहब इसको गुनाह नहीं समझ रहे हैं कि लड़की वालों से उन्होंने 5 लाख रुपये लेकर आए, बल्कि इसको अल्लाह का करम समझ रहे हैं। देखो ये है हमारी अकल, ये है हमारी सोच, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो खुलासा ये है कि ये चीज जुल्म है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। लड़की वाले अपनी खुशी से भी दे, तब भी आप उनको इनकार करो, आप उनको ये बोलो भाई हम मुसलमान हैं, हमारी शरीयत ने बिल्कुल हमको इसकी इजाजत नहीं दी है, इसलिए हम माजूर है, हम आपके ये पैसे नहीं लेंगे। अब आपको एक चीज ये बता दूं कि देखो ये जो रसूमात है, अब हमारे यहाँ पे क्या रस्म होती है, ये जो कपड़ों के मामले में एक रस्म हमारे यहाँ पे ये है कि दुल्हन के कपड़े दूल्हे वाले खरीदते हैं और वो रिवाज है। दुल्हन को 10 जोड़े लिए जाते हैं और दुल्हन को जो है जेवरात दिए जाते हैं और दुल्हन को जो है ये किया जाता है, वो किया जाता है, ऐसे बहुत सारे रिवाज है। लेकिन अगर आपको ये रिवाज को तोड़ना है तो साफ तौर पे निकाह की मजलिस में आप ये कहोगे भाई लड़की वाले अपने कपड़े पहने और लड़के वाले अपने कपड़े पहने, एकदम साफ लफ्ज हो। लड़की वाले तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा, TTMM इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते, TTMM, तू तेरा मैं मेरा। हम लोग बचपन में दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, हमारे गांव में जतरा लगती थी, जतरा, तो हम लोग पहले से तय करते थे, मदरसे में पढ़ते थे हम लोग, घूमने को निकलते थे तो पहले थे एक दूसरे को बोलते थे TTMM, तू तेरा मैं मेरा। मतलब जो भी खर्चा पानी होगा वो हर आदमी अपना अपना करेगा। मतलब रिक्शे में जा रहे हैं, अब रिक्शे वाले ने बोला भाई 30 रुपये हो गए, तो एक साहब जो है वो बहुत बड़े दाता बन के उन्होंने बोले ये लीजिए मैं 30 रुपये देता हूँ, और बाद में उनके पास खुद वापस आने को पैसे नहीं है। तो ऐसा नहीं, भाई तू तेरे 10 रुपये दे, हम हमारे 10-10 रुपये देंगे, चलो सब अपना अपना देखो। तो यही हिसाब जो है ना हमारे निकाह के मजलिस में भी होना चाहिए कपड़ों के मामले में, TTMM, यानी तुम तुम्हारा हम हमारा। आप अपने कपड़ों का देखो, हम हमारा देखो। अभी जैसे मेरे फर्जंद का भी जो आज कुछ दिनों पहले निकाह हुआ, उसमें हमने लड़की वालों से यही कहा, हमने बोले तुम तुम्हारा हम हमारा, हमारा दूल्हा उसके कपड़े पहनकर आएगा, तुम तुम्हारी दुल्हन को जो कपड़े पहनाना है पहना। और फिर वो जो रिवाज जिसको बोलते हैं ना 10 जोड़े देना चाहिए, 15 देना चाहिए। अब जब हमने वलीमा किए तो वलीमे के अंदर तकरीबन 60 से 70 जो जोड़े थे हमारे रिश्तेदारों ने मेरी अहलिया को हदिये में दिए। यानी उनकी भी 6-7 बहनें हैं, फिर उनके भाई है, फिर उनके भी है, फिर मेरी बहनें हैं, मेरे भाई लोग हैं, सब लोगों ने जो कपड़े लेकर आए। अब दुल्हन हमारे घर पे आ गई, दुल्हन को हमारे घर पे आने के बाद में एक 10 दिन 15 दिन हो गए, फिर उसके बाद हमने अपने खुशी से, मेरी जो अहलिया है उन्होंने अपनी खुशी से वो जो कपड़े हदिये में आए थे उनके लिए, उसमें से जो अच्छे अच्छे थे वो निकाल के उन्होंने अपनी तरफ से दुल्हन को हदिया दिया कि भाई ये मेरी तरफ से तुझे हदिया है, 10 नहीं है 15 है ये, चलो उससे ज्यादा ले लो मेरी तरफ से हदिया। लेकिन हमको रस्म रिवाज को तोड़ना है। एक बात याद रखो, मैं क्या बोला वो समझो पहले मेरी बात, भाई तुम तुम्हारे कपड़ों का देखो, हम हमारे कपड़ों का देखेंगे, ये है। और लड़की वालों से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए, 1 रुपया, कपड़ों के नाम पर, जूतों के नाम पर, शूज के नाम पर कुछ नहीं है, ये उनका काम नहीं है। आपके लिए शर्म की बात है, आपके जिंदगी का इतना बड़ा दिन है जिस दिन आप रिश्ते अज़दवाज में बंध रहे हो, आपका निकाह हो रहा है, और ऐसे मौके पर अगर आप अपने ससरे के कपड़े पहनकर
निकाह की मजलिस में बैठो, शर्म की बात है ये। इसलिए अपने खुद के कपड़े जो है हमने पहनकर बैठना चाहिए पूरी खुददारी के साथ। तो ये मसला क्लियर हो गया। जहेज की एक किस्म, ये पहली किस्म है, जोड़े की रकम लेना या जहेज के लिए पैसे मांगना, ये मसला अपना हो गया क्लियर। अब आते हैं वो जहेज के ऊपर जो जहेज की उमूमन लोग लड़की वालों को लिस्ट देते हैं कि हमको जहेज में ये चाहिए, हमको जहेज में वो चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको कार चाहिए, हमारे लड़के को बुलेट चाहिए, हमारे लड़के को बाइक चाहिए। तो अब उसके बारे में पहले मैं आपको किताब में पढ़कर सुनाता हूं और आगे फिर पढ़ता हूं। बरी और जहेज ये दोनों दर हकीकत लड़के वालों की तरफ से ज़ौजा यानी अहले खाना लड़की को हदिया है, और जहेज जो दर हकीकत अपनी औलाद के साथ सिला रहमी है, फी नफ्सी ही अमरे मुबाह बल्कि मुस्तहसन है। अगर खुदा किसी को दे तो बेटी को खूब देना बुरा नहीं, मगर तरीके से होना चाहिए जो लड़की के कुछ काम भी आए। जहेज में चंद बातों का लिहाज रखना जरूरी। जहेज में इस अम्र का लिहाज रखना चाहिए कि अव्वल इख्तेसार यानी गुंजाइश से ज्यादा कोशिश ना करे। दुवम जरूरत का लिहाज करे यानी जिन चीजों की सरे दस्त जरूरत वाक़े हो वो दे। तीसरे ये कि ऐलान ना हो, क्योंकि ये तो अपनी औलाद के साथ सिला रहमी है, दूसरे को दिखलाने की क्या जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िइल से जो इस रिवायत में मज़कूर है जी। और तीसरे जो है लड़के वालों को इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं रहेगी कि वो लड़की वालों से किसी चीज को मांगे। ये मैंने अभी जो पढ़ के सुनाया ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में से है। अब यहाँ मसले को पहले हम समझते हैं और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताते हैं। हजरत थानवी ने लिखा है कि कोई आदमी अगर अपनी औलाद को यानी अपनी बेटी के साथ अगर उसको कुछ दे रहा है तो वो उसके साथ सिला रहमी कर रहा है, ये मुबाही नहीं है बल्कि मुस्तहसन है। खुदा अगर किसी को दे तो बेटी को देना बुरा नहीं है, मगर तरीके से होना चाहिए जो लड़की के काम है। अब देखो कुछ बातें लिखी है। अव्वल ये इख्तेसार यानी गुंजाइश से ज्यादा कोशिश ना करे। पहले ये जुमले को हम बता देते हैं। गुंजाइश का मतलब क्या है? गुंजाइश का मतलब यह है कि भाई अगर आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी को जो जो चीज यानी आपको सूद से पैसे लेने की और कर्जा लेने की और लोगों से मांगने की और अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप क्या करें, आप जो है आपके जितनी आपकी इस्तेताअत है और जो जरूरी चीज है, जैसे उसको काम आने वाला है, एक रेफ्रिजरेटर है वो काम आने वाली चीज है, वॉशिंग मशीन है वो उसको काम आने वाली चीज है, और किचन में जो सामान है वो काम आने वाला है, ये जरूरत की चीजें आप उसको दे। अब बिला वजह जो है सिर्फ जो दिखावे वाली चीजें हैं वो चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैंने खुद ये देखा हूं कि बाज औकात लोग जो है तांबे के और इसके बड़े बड़े जो बर्तन देते हैं वो उसको देखने की भी जरूरत। मेरी वालिदा के बर्तन खुद आज तक पड़े हुए हैं जो कभी हमने इस्तेमाल में नहीं किए। मेरी वालिदा के मैं बता रहा हूँ जो मेरे नाना ने दिए। अब आप सोचो सिर्फ शो के लिए तांबे के पूरे बर्तन सजे हुए हैं, वो कुछ फायदे के नहीं है। उससे बेहतर ये है आप अपनी बेटी को सोने के जेवरात भी अगर दे रहे हो तो वो आपके बेटी के काम आएंगे आगे चलकर फ्यूचर में। उसका मालिक आप लड़के वालों को ना बनाएं बल्कि अपनी बेटी को ही उसका मालिक बनाएं, या खुद उसके मालिक रहे और लड़की को आप आरियतन वो इस्तेमाल करने के लिए दिए, ये भी उसकी एक शक्ल हो सकती है। लेकिन फजूल की जो चीजें हैं जो आज हमारे जमाने में और हमारे मुआशरे में दी जाती है उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो उतना ही देना चाहिए जितनी आपकी गुंजाइश है। आपको जो है सूद से पैसे लेने की और कर्ज लेने की और लोगों से मांगने की जरूरत ना पड़े। तीसरे ये लिखा हुआ है कि ऐलान ना हो, क्योंकि ये तो अपनी औलाद के साथ सिला रहमी है, दूसरे को दिखलाने की क्या जरूरत है। एक चीज तो ये हो गई। अब देखो तीसरा जो है ना वो ये है कि आप जो भी दे रहे हो, अब जैसे मैंने इससे एक सबक दिया था इस उन्वान के ऊपर कि थाना भवन का ही वाकया था। वो बागपत जिले के दो वाकये थे, एक थाना भवन का था और दूसरे जो है कैराना का था, जो जहाँ पे एक तो मंगनी की रस्म का था और दूसरा शादी का था, जिसके अंदर ऐलान करके दिया जा रहा है भाई दूल्हे को ये मुंह दिखाई के 5 लाख रुपये, यानी मुंह देखने के उन्होंने 5 लाख रुपये दे दिए। फिर दूसरा ऐलान किया गया, बोले भाई ये लड़की के चचा की तरफ से दूल्हे को 21 लाख रुपये, दूल्हे की अम्मा को 1 हार, दूल्हे की दादी को 1 हार,
दूल्हे की सारी खालाओं को, सारी फुप्पुओं को, सारी चच्चियों को एक एक हार और एक मोबाइल फोन। अब मुझे आप बताओ वो बुढ़ियों को मोबाइल फोन की क्या जरूरत है, जिनकी उम्र 60-70 साल हो गई, उनको या ऐसे बोले सबको सैमसंग मोबाइल फोन दिया जा रहा है। अरे वो क्या करेंगी सैमसंग मोबाइल फोन लेके, मुझे आप बताओ। वो ऐलान करके, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे, 51 लाख और बोले वो फुलाने को कार। तो भाई ये जो दिखावा आप करके दे रहे हो, बाद में पता चला कि जो इनकम टैक्स वाले थे उन्होंने उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटी आपकी है, बेटी आपकी है, आप अपनी बेटी को जो देना चाहते हो। देखो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, महाराष्ट्र के जो अमीर थे, बड़े आलिम दीन थे, और माशाल्लाह उनका पूरे महाराष्ट्र में जो मेहनत है उनकी तबलीग के लाइन से। तो मैं मौलाना के सामने बैठा हुआ था, मौलाना ने ये बात बयान में बताए थे। बोले देखो वो परभनी के अंदर, महाराष्ट्र में एक जिला है परभनी, परभनी में मौलाना ने ये बयान किए थे। इसके अंदर अपने इज्तिमा था, इज्तिमा में निकाह की मजलिस में, तो मौलाना ने एक जुमला बोले थे, मुझे अभी तक याद है मौलाना का। मौलाना ने बोले थे देखो एक चीज याद रखो, लड़की के बाप की इस्तेताअत नहीं है तो लड़के को शरीयत ने मांगने का हक बिल्कुल नहीं दिया है। लड़के का मांगना लड़की वालों से, मुझे जहेज में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज है। लेकिन अगर कोई बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ दे रहा है, बोले अगर कोई बाप अपनी बेटी को पूरा परभनी भी लिख कर दे दे तो तुम्हारे मेरे बाप का क्या जाता है। ये मौलाना का स्टाइल था बोलने का। बोले कोई बाप अगर अपनी बेटी को पूरा परभनी भी लिख कर दे देता है तो तुम्हारे मेरे बाप का क्या जाता है, बाप जाने बेटी जाने। लेकिन अगर बाप की इस्तेताअत नहीं है तो इस लड़के को शरीयत इजाजत नहीं देती है कि वो उसके बाप को मजबूर करे। ये एक जुमला आप समझ लो खाली, अपनी मर्जी से अगर बाप दे रहा है अपनी बेटी के लिए, बेटी के, तो वो बाप जाने बेटी जाने, वो दे सकता है अपनी बेटी को। लेकिन उसमें दिखावा करना, उसमें ऐसा वीडियो बनाना, उसमें ऐसे ऐलान करना फुलाने की तरफ से 25 लाख और फुलाने की तरफ से 51 लाख और गाड़ी और मोबाइल, ये सब चीजें बिल्कुल भी नाजायज है, बल्कि उल्टा इस्लाम और मुसलमानों की छवि खराब करने वाली है। आगे मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा का जो जहेज था उसके अंदर 2 यमनी चादर, 2 निहाली जिसमें अलसी की छाल भरी हुई थी, और 4 गद्दे, चांदी के 2 बाजूबंद और एक कमली और तकिया और एक प्याला और एक चक्की और एक मशकीजा और पानी रखने का बर्तन यानी घड़ा, बाद रिवायतों में एक चारपाई भी आई है। अब ये सब चीजें जो अल्लाह के नबी ने दिए थे, इसमें एक चीज और याद रखो कि ये तमाम चीजों में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीजें जो दिए थे वो हजरत फातिमा को नहीं दिए थे, बल्कि वो दिए थे हजरत अली को। इसलिए कि हजरत अली जो है ना वो अल्लाह के नबी की परवरिश में थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने उनको दिए थे। तो इसलिए जहेज की लालच करना, जहेज का डिमांड करना या जहेज लड़की वालों से मांगना, ये बिल्कुल भी गलत है। अभी हम जो हमारे भी निकाह की कार्रवाई हुई उसमें मैंने साफ लफ्जों में लड़की वालों से हमने ये कहा था, हमको आपका कुछ भी नहीं चाहिए, और ना ही हम आपको ये बोलेंगे कि भाई आपकी बेटी है, आपको जो देना है वो दे सकते हैं। ये भी हमारा ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं, हमको कुछ ही नहीं चाहिए तुम्हारे से, जो देने का है वो भी मत दो आप हमारे को। अल्लाह के फजलो करम से हर जरूरत की चीज है हमारे पास में, हमको तुम्हारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस तुम टेंशन मत लो। मैंने लड़की के वालिद साहब से 3 मरतबा जो है मुख्तलिफ औकात में ये पूछा, मैं बोला भाई तुमने कुछ कर्जा वगैरह तो नहीं लिए किसी से, ऐसा कर्जा वगैरह लेके बिल्कुल निकाह मत करो, बल्कि अपने को एकदम सादगी के साथ में इस चीज को मुनाकिद करना है। तो बहरहाल ये मैं आपको बीच में मिसाल इसलिए भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि देखो हमारे दिल, हमारी नीयतें जो है ना वो साफ होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जब मेरा निकाह हुआ था मेरे ससरे साहब ने भी मुझे जहेज के अंदर एक पंखा दिए थे। कौन सा पंखा दिए थे, ये जो छत को लगा हुआ है वो पंखा नहीं, और वो जो पंखा होता है पोर्टेबल यानी जो खड़ा हुआ होता है और उसको आप घर में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वो भी पंखा नहीं। फिर कौन सा पंखा दिए थे, मेरे ससरे साहब ने जो पंखा मुझे दिए थे वो पंखा ऐसा था, ऐसा जो हाथ से हिलाने का जो पंखा रहता ना, इस तरीके से जो पंखा किया जाता है। आया आप लोगों के समझ में कौन सा पंखा मैं बोल रहा हूँ? वो पंखा भी घर पे बनाया हुआ था,
घर की मस्तूरात ने बैठे बैठे उसको जो है एक बांस की लकड़ी लगा दिए थे, और उसके अलावा जो उसको झालर वालर लगाई हुई होती है लाल कलर की, वो लगा के वो पंखा पकड़ के हम इस तरीके से कभी हवा किया करते थे वो पंखे से, वो पंखा उन्होंने दिए। और हमने उनसे किसी चीज का एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया, ना कोई चीज तलब की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कभी भी इंसान को महरूम नहीं करता है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आज हम हमारे हर कमरे के अंदर जो है ना एसी लगा सकते हैं। एसी एसी जो रहता है ना, वो हर कमरे के अंदर हम लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है वो लगाने में। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि जब आप किसी से उम्मीद नहीं करोगे तो अल्लाह खुद ब खुद आपको हर चीज नवाजेगा। फिर पंखे नहीं बल्कि पंखे की दुकान डाल सकते, आप पंखे का पूरा शोरूम ओपन कर सकते। तो कोई जरूरत नहीं है उनसे मांगने की या उनसे एक्सपेक्टेशन करने की, ये चीज याद रखो। तो आज के सबक का खुलासा यही है, 3 बातें याद रखना। पहली चीज, तिलक की रस्म, जोड़े की रकम जो समाज के अंदर आम है, ये बिल्कुल भी नाजायज है, बिल्कुल हराम है। शरीयत इस्लामी आपको बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देती है। एक चीज ये है, लड़की वालों से आप ये कहेंगे, या लड़की वाले हैं तो वो लड़के वालों से तुम तुम्हारा हम हमारा, आप अपने कपड़ों का देखो। एक चीज ये हो गई। जहेज के बारे में लड़की वालों से किसी किस्म का कोई डिमांड नहीं, भाई हमको तुम्हारा कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए, हम सादगी के साथ में सिर्फ निकाह करना चाहते हैं बस। लड़की वाले बोले नहीं नहीं हमारी बेटी है, हम ये देना चाहते हैं, वो तुम्हारी मर्जी, बोलना वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी चीज, अगर आपकी भी बेटी है और आप अपनी बेटी के निकाह में कुछ देना चाहते तो बेटी जाने बाप जाने, आपको अपनी बेटी को जो देना है वो आप दे सकते हैं, आपको शरीयत ने मना नहीं किया। लेकिन शरीयत आपको रोकती है दिखावा करने से, लोगों को बताने से। वो बाप जाने बेटी जाने। ये 3 चीजें आज के सबक का खुलासा है, इसको याद रखो। इंशाअल्लाह कल का जो हमारा सबक रहेगा, मंडे को जो होगा, क्योंकि कल तो संडे है, कल छुट्टी रहेगी, मंडे को जो हमारा सबक होगा उसके अंदर हम आपको फाइनल निकाह की प्रोसेसिंग, उसके बारे में जो है सारे डिटेल्स बताएंगे। और बारात के बारे में, जो आजकल बारात ले जाना, और हमारे 200 मेहमान रहेंगे, 400 मेहमान, 500 मेहमान, इस तरीके से मेहमानों का तकाजा लड़की वालों के सामने रखना, इसकी क्या शरई हैसियत है, वो इंशाल्लाह कल हम डिटेल्स में बयान करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सबक यहीं पे खत्म होता है, मुकम्मल होता है। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हमको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब देने की। चलो, ये पहले ही एक मैसेज आ गया है जिसमें लिखा है आज का सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया और बहुत अच्छी नसीहत है इस सबक में, ये आपके YouTube चैनल पे जरूर अपलोड होना चाहिए। देखो ये असबाक मैं YouTube पे अपलोड करता हूँ, लेकिन वो रहते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको दूल्हा दुल्हन कोर्स करना है। अगर हम आम तौर पे ये सब अपलोड करेंगे ना तो फिर दूल्हा दुल्हन कोर्स की अहमियत खत्म हो जाएगी। और इसका मकसद ही ये है कि लोग पाबंदी से, एहतमाम से वक्त पे ज्वाइन करें और पूरे एहतमाम से दूल्हा दुल्हन कोर्स को सुने। चलिए, ये दूसरा सवाल ये है, मुफ्ती साहब तबीयत खराब है, मेरी दुआ की दरखास्त। भाई देखो, आप तमाम लोगों के एक साथी है अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी तबीयत खराब है, लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद से, मौलाना ने माशाअल्लाह कहा है, भाई जज़ाकल्लाह मौलाना, अल्लाह आपकी दुआ को बेइंतहा कबूल फरमाए। हैदराबाद के अंदर मौलाना आकिल साहब थे हुस्सामी, निकाह के उन्वान से मैं उनके बयानात बहुत पाबंदी से सुनता था। मेरे पास में कैसेट्स थे मौलाना के, और मौलाना से मुझे एक दिली मोहब्बत भी थी। मौलाना को हमने एक मरतबा हमारे गांव में दावत दे के बुलाए भी थे, बड़ा अजीम शान जलसा किए थे, उसकी भी शायद मेरे पास घर पे कैसेटें होंगी। उसके अलावा मैं हैदराबाद भी मौलाना से मिलने के लिए 1-2 मरतबा आया था। दारुश शिफा की मस्जिद में मौलाना जुमा में बयान करते थे, मौलाना हमीदुद्दीन आकिल साहब हुस्सामी। चलिए, ये एक और सवाल आया है, लड़की के माँ बाप के हिसाब से जरूरी सामान है, उसको लड़के वाले मना कर सकते हैं? लड़के वाले तो मैंने बताया ना आपको, भाई लड़के वाले मना कर सकते हैं,
लड़के वाले ये बोल सकते हैं भाई देखो ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे घर पर है, हमको जरूरत नहीं है इसकी। अब अगर लड़की वाले ये कहे नहीं 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 हमको देना ही है अपने बेटी को, तो कोई मसला नहीं है, वो दे सकते हैं। बाकी लड़के वालों को मना लड़के वाले बिल्कुल कर सकते हैं। हमने खुद अपने केस में लड़की वालों को मना किया हर चीज देने से। भाई हमारे पास एक तो जगह नहीं है, हमारे पास में जो है माशाल्लाह अल्लाह ने वो सारी जरूरियात की चीजें ऑलरेडी घर के अंदर है, ये डबल डबल हम रख के क्या करेंगे तुम्हारी चीजों को। तुम वही पैसे तुम्हारे डेवलपमेंट में खर्च करो, ये मैंने कहा लड़की के वालिद से। तुम खुद अच्छा कारोबार करो वही पैसों में, खुद की गाड़ी लो, खुद का घर बनाओ अच्छे से। तो इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। चलिए और किसी का कोई सवाल है भाई? चलिए सवाल सवाल सवाल, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? चलिए अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो अब हम आप तमाम लोगों से इजाजत चाहते हैं, दुआओं की दरखास्त। मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।